Hello, students. I welcome you all in this online learning platform provided by Morning Star Public School. मैं आप सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूँ मॉर्निंग स्टार पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे. So, how are you all, guys? I hope you all are doing well. So, today, what I'm gonna teach you, I'm gonna teach you maths. Right, students? I'm gonna teach you maths. In maths, what I'm gonna teach you, I'm gonna teach you first your first chapter. What I'm gonna teach you, I'll teach you the first chapter, which is integer. The chapter 1 is integer. So, students, as you all know about the integer, you are familiar with the integer. In the earlier class in standard 6, what we have already learned about the integers, how to order them, how to order integers, how to compare them, how to add them, and how to subtract them. We already know these things, right, students? हम लोग ये सब चीज़ जानते हैं. इंटीजर के बारे में बेसिकली हम लोग को थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टैंडर्ड 6 में पता थी, जैसे कि कैसे हमें उसे ऑर्डर करना है, कैसे कंपेयर करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है. So my dear students, in this chapter we will learn the properties of integer. What we will learn? We will learn the properties of integer. In this chapter we'll more focus one step ahead. What we have learned in the 6th class, we'll not discuss that thing. We'll move one step ahead and we'll directly move on to the properties. What are the properties of integer? How the operations are performed, like multiplication, how we'll perform multiplication operation with integer, how we will divide, how we will compare which integer is greater and all. So let us have a quick recall on what we have learnt earlier. Let's have a quick look. What we have learnt earlier. So before moving ahead, if I'm starting integers chapter, I will ask you, tell me, what is integer? What is integer? बताओ इंटीजर क्या है. इंटीजर की स्पेलिंग मुझे बता दो. INTEGERS. इंटीजर्स क्या है बच्चों? मुझे आप ये बताएं कि इंटीजर्स क्या है. What is integers? So आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना? मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, टेल मी व्हाट इज इंटीजर. द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटीजर. सो इफ आई एम आस्किंग यू define integer, then what you will say? Sir, a set of natural number. So a set of natural number containing 0 and negative, their negative. A set of natural number containing 0 and their negatives are called integer. If somebody asks you what is integers or define integer, then what you will tell? You will tell a combined set of natural numbers, their negatives and 0. A set of natural numbers, their negatives and 0 are called integer. Then the next point come to my mind is, if you are saying a set of natural number, then what is natural number? Then the teacher will ask you what is natural number. If you are saying that a set of natural number, their negatives and 0 is called integer, then tell me what is natural number. What is set of natural number? So what is natural numbers? So जैसे ही आप बोलते हो स्टूडेंट कि इंटीजर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है कंटेनिंग 0 एंड नेगेटिव. नेचुरल नंबर क्या है उसको हमको पहले समझना होगा. जैसे ही आप डिफाइन करते हो इंटीजर को, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर
called as natural number, or called as natural number, called as natural number. All counting numbers are called as natural number. अब काउंटिंग नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and so on. Natural number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें कौन सा नंबर कहा जाता है, उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है. अब इंटीजर के डेफिनेशन में आता क्या है, इंटीजर के डेफिनेशन में नेचुरल नंबर्स के सारे सेट्स आ जाते हैं. ये जो भी ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर के सारे सेट्स, मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ. ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और उसमें क्या कंटेन होना चाहिए, ज़ीरो भी, कंटेनिंग ज़ीरो एंड देयर निगेटिव एंड देयर निगेटिव्स. ठीक है, नेचुरल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, ए कंबाइंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, a combined set of natural numbers, their negative and zero is called integer, is called integer. So if somebody asks you, tell me the definition of integer, then what you will say, a combined set of natural number, their negatives and zero is called integer. Then what you will say, and zero is called integer, and zero is called integer. So this one is all about the definition of integer. So कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जितने भी काउंटिंग नंबर होंगे, काउंटिंग नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन. ये जो भी नंबर्स होते हैं ये काउंटिंग नंबर होते हैं. इसमें हम अगर जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, और जितने भी काउंटिंग नंबर हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, इसका अगर हम निगेटिव ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 14 -15 -16, तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं और जीरो को भी उसमें ले लेते हैं, तो ये जो मिलाकर ये जो सेट बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर. इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर. और इंटीजर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली. इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आई, लेटर आई. अल्फ़ाबेट लेटर में जो कैपिटल आई होता है उससे हम इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, और कभी कभी हम क्या करते हैं, जेड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. कभी कैपिटल जेड से भी हम इंटीजर को रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो इंटीजर क्या होता है, ये आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट और नॉट, आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट. सो इंटीजर का एग्जाम्पल मैं पूछूँ, if I'm gonna ask you -1 is an integer or not, then you will say yes sir, sure, because
1 is a counting number and counting numbers are natural number, and if we are taking negative of all natural number, then it must be a natural number. If we are taking a negative of a natural number, it must be a integer. It must be a integer. All natural numbers along with their negatives and zeros is called integer. Minus 2 is an integer or not? Tell me, minus 2 is an integer or not? Yes, certainly, sure. Minus 2 is also an integer. Minus 3 is also an integer. Minus 4 is also an integer. 1 is integer or not? Yes, 1 is a counting number. It's a natural number. And positive counting number, positive natural number, so surely it is an integer. 1 is an integer, 2 is an integer, 3 is an integer, 4 is an integer, 5 is an integer, 6 is an integer, minus 1 is an integer, minus 2 is an integer, minus 3 is an integer, minus 4 is an integer, minus 5 is an integer, minus 6 is an integer. If now let's suppose if I am gonna ask you 0 is an integer or not, so you will say sir ये तो डेफिनेशन में ही आपने बता दिया कि काउंटिंग नंबर के साथ अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं और काउंटिंग नंबर में निगेटिव्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर कौन कौन से 1 2 3 4 5 और निगेटिव्स को इंक्लूड करने का मतलब क्या कि माइनस 1 है काउंटिंग नंबर, 2 है काउंटिंग नंबर, 3 है काउंटिंग नंबर, 4 है काउंटिंग नंबर, 5 है काउंटिंग नंबर। अगर इसके आगे मैं माइनस लगा दूँ तो ये क्या हो गया, 1 का ये निगेटिव वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू। ये काउंटिंग नंबर्स का निगेटिव वैल्यू हो गया, देयर निगेटिव्स, नेचुरल नंबर एंड देयर निगेटिव्स। ये निगेटिव हो गया तो ये भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। -2 ये भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। -3 ये भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। -4 ये भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। -5 ये भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। -6 ये भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। -7 ये भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। और काउंटिंग नंबर के साथ उसकी सारी निगेटिव वैल्यूज़ प्लस क्या, ज़ीरो, प्लस अगर जीरो को भी हम सेट में इंक्लूड कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर। उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर। देखो इंटीजर को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, नेचुरल नंबर एंड देयर निगेटिव्स प्लस जीरो। ये पूरा डब्बा मिला के क्या बनता है, इंटीजर। ये आपको क्या दे देगा, इंटीजर। ये क्या दे देगा, इंटीजर। इसमें सारे इंटीजर आ गए। नेचुरल नंबर एंड देयर निगेटिव्स प्लस जीरो विल गिव यू इंटीजर, विल गिव यू इंटीजर, विल गिव यू इंटीजर। ठीक है। अब क्या होते हैं कि जैसे मैंने क्या बोला, नेचुरल नंबर एंड देयर निगेटिव। मैंने क्या बोला, नेचुरल नंबर एंड देयर निगेटिव। और मैंने नेचुरल नंबर क्या बोला, काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है। काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर होते हैं। और मैंने डिफिनीशन में इंटीजर की क्या क्या है कि नेचुरल नंबर तो हो प्लस इनके निगेटिव वैल्यूज़ भी हों। क्या हो, निगेटिव वैल्यूज़ भी हों। -1 भी हो, -2 भी हो, -3 भी हो, -4 भी हो, -5 भी हो, -6 भी हो, -7 भी हो, -8 भी हो, -9 भी हो, -10 भी हो। नेचुरल नंबर भी हो और इनके निगेटिव वैल्यूज़ भी हों। निगेटिव वैल्यूज़ जैसे 1 की निगेटिव वैल्यू, -1, 2 की निगेटिव वैल्यू, -2, 3 की निगेटिव वैल्यू, -3, इनकी निगेटिव वैल्यू भी हो। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म क्या हो, जीरो भी। अगर जीरो भी हो तो ये जो सेट बनेगा उस पूरे सेट को हम क्या बोल देंगे, इंटीजर। उस पूरे सेट को क्या बोल देंगे, इंटीजर। पूरे सेट को क्या बोल देंगे, इंटीजर। अब देखो, नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे जब मैंने नेचुरल नंबर एंड देयर निगेटिव्स को लिया तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर बन रहे होंगे। क्या बन रहे होंगे, पॉजिटिव इंटीजर। और एक क्या बन रहे होंगे, निगेटिव इंटीजर। एक क्या बन रहे होंगे, निगेटिव इंटीजर। बोलो कैसे, हाउ सर, बोलो हाउ सर। तो पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर,
पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड सो ऑन। और नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर ये सब हो जाएंगे -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ये सब क्या है? निगेटिव इंटीजर। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि जीरो क्या है, व्हाट इज जीरो, तो आप क्या बोलोगे? सर जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना निगेटिव है। जीरो बस एक इंटीजर है। जीरो क्या है? बस एक इंटीजर है। जीरो इज एन इंटीजर। जीरो इज एन इंटीजर, but you can't say that 0 is a positive integer or 0 is a negative integer. It's just only an integer. It's just only an integer. Okay, so इतनी बातें हमें समझ में आ गई। पॉजिटिव इंटीजर क्या होती है, व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज नेगेटिव इंटीजर, डज जीरो इज अ पॉजिटिव इंटीजर और अ नेगेटिव इंटीजर, then what you will say? No sir, zero is not a positive integer, not a negative integer. It is an integer only. It is an integer only. And if somebody gonna ask you, just tell me, define me what is integer, then what you will say? Sir, a combined set of natural numbers and their negatives and zero is called an integer. Is called an integer. Then you will say, what do you feel? What do you feel by integer? What do you feel by integer? Then you will say, sir, what I am saying is a set of natural numbers and their negatives and zeros. So natural number is what? All counting number is a natural number. All counting number is a natural number. And I am saying that if we are taking negative values of a natural number also along with their zero, along with a number 0, then the whole quantity, then the whole set will become an integer. Natural number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो होते ही हैं। अगर मैं इनके आगे माइनस लगा देता हूँ तो ये भी क्या होंगे? इंटीजर होंगे। -1 -2 -3 -4 -5 भी क्या होंगे? इंटीजर ही होंगे। और एक नंबर 0 को भी इस सेट में डाल देता हूँ तो ये तीनों मिला के जो सेट बनेंगे, पॉजिटिव इंटीजर का सेट, नेगेटिव इंटीजर का सेट प्लस 0 का सेट, ये क्या कहलाएगा? पूरा इंटीजर सेट आ गया इसमें। इसमें क्या आ गया? पूरा इंटीजर सेट। So the next question here arises, how will you represent integer? Then you will say, sir, we will represent integer by a capital letter I or a capital letter Z. We will represent integer by a capital letter I or a capital letter Z. हम integer को capital letter I और capital letter Z से represent कर सकते हैं। अब ये तो था definition of integer। integer क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर क्या होता है, जीरो पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है, इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये था। अब कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट वी हैव, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, representation of integers on a number line. How we will represent integers on a number line. अब विजिबल होगा आप लोग को। number line, representation of integers on a number line. So let's see how we will represent integers on a number line. Let's have a quick look at how we will represent integers on a number line. So there are some certain steps which we need to follow. There are some certain steps which we need to follow while representing an integer on a number line. तो बच्चों कुछ स्टेप्स इसमें हमें फॉलो करने होंगे। कुल मिला के इसमें हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे कि हम कैसे नंबर लाइन पे
इंटीजर को रिप्रेजेंट करें, कैसे नंबर लाइन पे इंटीजर को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, कैसे हमें नंबर लाइन पे इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है। तो स्टेप 1 क्या है ये मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको एक 1 बाय 1 मैं समझा दूंगा। 1 बाय 1 आई विल डिक्टेट यू, आई विल ट्राई टू लेट यू क्लियर ऑल दीज स्टेप्स what we have to do while representing integer on a number line. So let's have a look. Step 1, draw a straight line and put arrow sign on both ends of the line. Draw a straight line, draw a straight line and put arrow sign on both ends of line, Step 2, mark a point on it and label it as a 0. Third point, step 3, mark points at equal distances from 0 on both sides of it. Fourth step, label the points to the right of 0 successively as 1, 2, 3, and the points to the left of 0 successively as -1, -2, -3। एक बार मैं ये चारों पॉइंट्स को लिख देता हूँ, उसके बाद मैं ये सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन, हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन, तो पहला स्टेप है कि ड्रा स्ट्रेट लाइन and put arrow sign on both ends of line. Draw a straight line and put arrow sign on both ends of line. Second है mark a point on it and label it as a 0. Third क्या है, mark points at equal distances from 0 on both sides of it. Fourth point क्या है, label the points the right of a 0 successively as 1, 2, 3 and the points to the left of 0 successively as -1, -2, -3. So let's have a quick look how we will represent a number line, how we will represent integer on a number line. इंटीजर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ये एक बार हम देख लेते हैं। 4 स्टेप्स हैं। पहले हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है और स्ट्रेट लाइन में दोनों एंड्स में हमें क्या कर देने, एरो लगा देने। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ किया, और इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के बाद इसके कितने एंड हुए, एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, एक लेफ़्ट साइड में एंड हुआ और एक राइट साइड में एंड हुआ, और मैं दोनों एंड्स पे ऐसे एक एरो लगा दूंगा। ये मैंने ऐसे एरो लगा दिया। ये पहला स्टेप हुआ, ये स्टेप 1 था। ये क्या था, स्टेप 1। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इन द सेकंड स्टेप, वी हैव टू मार्क ए पॉइंट ऑन इट एंड लेवल इट एज अ 0। तो हम जैसे ये लाइन ड्रॉ करते हैं, व्हेन वी आर ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, देन एट द एंड्स वी हैव टू पुट 2 एरोज एंड मार्क ए पॉइंट इन द मिडिल, और मिडिल में हमें मार्क करना है एक पॉइंट, और इस पॉइंट को हमें 0 नाम दे देना है। इस पॉइंट को क्या नाम दे देना है, 0। व्हाट वी विल नेम्ड
this point, we will name this point as a 0. This one is the second step. In the third step, what we have to do, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें पॉइंट्स मार्क करने हैं, हमें पॉइंट्स को मार्क करने हैं। थर्ड स्टेप में हमें पॉइंट्स को मार्क करने हैं इक्वल डिस्टेंस पे। ये 0 है, अब मान लीजिए मुझे 3 पॉइंट्स लोकेट करने हैं, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में और 0 के राइट हैंड साइड में। जैसे ये एक पॉइंट और इक्वल डिस्टेंस पे 0 और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए अगर 2 मीटर है, 2 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे वो भी 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे वो भी 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो 0 के बाद हमने कितने पॉइंट्स मार्क किए, 1 2 3 4। तो सिमिलर वे में ये 0 के बाद यहाँ से 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1, फिर 1, फिर उसी टाइप से हम क्या करेंगे, इधर भी उतने पॉइंट्स मार्क करेंगे और सिमिलर डिस्टेंस होना चाहिए, जो गैपिंग होनी चाहिए वो सिमिलर होनी चाहिए। ये 0, तो यहाँ पे जो पॉइंट मार्क करेंगे 0 के 1 सेंटीमीटर के बाद मार्क करेंगे। फिर उसी तरह से ये 4 पॉइंट्स इधर भी मार्क कर लेंगे, ये मार्क कर लेंगे, ठीक है। इधर 1 2 3 4 पॉइंट्स, इधर भी 0 के बाद 1 2 3 4 पॉइंट्स। और स्टेप 4 में हमें क्या करना है कि हमें लेवल करना है। लेवल द पॉइंट्स टू द राइट ऑफ 0 सक्सेसिवली एज 1 2 3 एंड द पॉइंट्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 सक्सेसिवली एज -1 -2 -3। तो ये हमने अब पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट स्टेप में हमें ये 0 था, ये हमने एक पॉइंट मार्क किया जो कि 0 से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या था कि सारे पॉइंट्स को मार्क कर लो, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, 0 के राइट हैंड साइड में। 0 के राइट हैंड साइड में मैंने 4 पॉइंट्स मार्क किए, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी मैंने 4 पॉइंट्स मार्क किए। उसके बाद हमें नाम दे देना है, उसको नेमिंग कर देना। तो इस पॉइंट को मैंने 1 बोल दिया, इस पॉइंट को 2 बोल दिया, इस पॉइंट को 3 बोल दिया, इस पॉइंट को 4 बोल दिया। 0 के जो राइट हैंड साइड में थे उन सारे वैल्यू को मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट साइड में जो भी है बट वी हैव टेकन नेगेटिव, वी हैव टेकन ऑल द वैल्यूज़ which are positive in the right side of the 0 and the negative values we have taken in the left side of the 0। हमें नेगेटिव वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड में लेना है और पॉजिटिव वैल्यू को किधर लेना है, राइट साइड में, ठीक है। तो ये जो पार्ट हो गया, ये 1 2 3 4, इसको क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, इसको क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और इधर 0 के लेफ्ट साइड में जो भी पार्ट है उसे हम क्या बोल देते हैं, निगेटिव इंटीजर। क्या बोल देते हैं, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। तो ये स्टेप्स था बच्चों। पहले स्टेप में हमें क्या करना था, एक लाइन फॉर्म करनी थी, और एंड्स पे एरो लगा देना था। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना था कि मिड पॉइंट पे 0 को लोकेट कर देना था। थर्ड पॉइंट में हमें 0 के लेफ्ट हैंड साइड में और 0 के राइट हैंड साइड में इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस मार्क करना था, इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस मार्क करना था। फोर्थ में हमें क्या करना था, 0 के राइट हैंड साइड में हमें पॉजिटिव इंटीजर पुट करने थे और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव इंटीजर पुट करने थे। सो दिस वाज द वे टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। हाउ वी विल रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, आई हैव given you a detailed explanation of about it, how we will represent integers, how the integers are represented on a number line. So students, I hope इस वीडियो में आपको मैंने जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा।